Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 9. So now open your textbook on page number 57. Revolt of 1857 in Gujarat. The 7th Battalion of the British Army broke into revolt in Ahmedabad, Gujarat in June 1857. However, it was soon halted. Dahod, Jalod and Godhra of Panchmahal witnessed the skirmishes with the British Army. The soldiers could capture government offices with the help of the natives, but were soon defeated. The Naikadas of Panchmahal continued the rebellion almost a year. तो 7th बटालियन ब्रिटिश आर्मी की ने बगावत कर दी अहमदाबाद गुजरात में जून 1857 को, लेकिन बहुत जल्दी उसको रोक दिया गया। दाहोद, जालोद और गोधरा पंचमहाल के यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी के साथ थोड़ी झपाझपी देखने को मिली। सिपाहियों ने गवर्नमेंट ऑफिसेस पर कब्जा कर लिया लोकल लोगों की मदद से, लेकिन बहुत जल्द वो लोग हार गए। लेकिन पंचमहाल के नायका दास ने रिवॉल्ट 1 साल तक जारी रखा। नाउ पेज नंबर 58। Garbardas Patel, the headman of Anand in Kheda district, collected almost 2,000 volunteers of the Koli and Naikada communities to join the revolt. He was supported by Jivabai Thakur of Khanpur, Malaji Joshi and Krishnadas Dave. However, the supporters of Garbardas were captured by the Britishers, tied to the cannon and were blown off with the cannonball fire. Garbardas was exiled to Andaman, where he died. तो गर्बरदास पटेल जो अहमदाबाद खेदा डिस्ट्रिक्ट के हेडमैन थे, उन्होंने 2000 लोगों की वॉलंटियर्स इकट्ठे किए जो कोली और नायकादा कम्युनिटी के थे, जिन्होंने रिवॉल्ट ज्वाइन किया, और जीवाबाई ठाकुर ऑफ खानपुर, मालाजी जोशी और कृष्णदास दवे ने उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन गर्बरदास के सपोर्टर्स को ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और तोपों के साथ बांधकर तोप चलाकर इन लोगों को मार दिया और गर्बरदास को अंडमान और निकोबार की सज़ा पे भेज दिया। वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। द पीपल ऑफ चंडप विलेज, विच इज़ 16 miles away from Idar, accepted the leadership of Nathaji and Yamaji and joined the revolt. The British had camped at Nandana village between Okha and Baradi. The British commander of Navy became impatient and he reached the fort of Bet Dwarka via the Bay of Bet. Donovan ordered an attack on the fort. Now, चंदपुर गांव के लोग जो 16 miles इधर से दूर था, उन्होंने नाथाजी और अमाजी की लीडरशिप को स्वीकार लिया और रिवॉल्ट में ज्वाइन हो गए। ब्रिटिशर्स ने अपना कैंप ओखा और बाराडी गांव के बीच नंदना गांव में बनाया। नेवी का ब्रिटिश कमांडर अधीरा हो गया, इम्पेशेंट, और बेट द्वारका फोर्ट पे पहुंच गया बे ऑफ बेट के रास्ते से। तब डोनोवन ने फोर्ट पर अटैक करने का आदेश दिया। द वागेज इनसाइड द फोर्ट हैड नो सच आर्टिलरी टू काउंटर अटैक. At this time, the Wagir women came up with a very brave and innovative idea. They soaked the mattresses with water in which they could catch the cannonballs and cool them immediately. This would enable the Wagir men to fight the battle without being hit by the cannonballs. Nowhere in the history of the world such act of valor has been exhibited. Wagir women very bravely disarmed the cannonballs without worrying about their own life. Their act of bravery was equivalent to that of Rani Lakshmibai, and these women were the Lakshmibais of Gujarat. तो जब डोनोवन ने फोर्ट में अटैक किया तो फोर्ट के अंदर वागेर्स थे। उनके पास ये अटैक का सामना करने के लिए आर्टिलरीज यानी तोपें नहीं थी। तब वागेर्स की जो वुमेंस थी, औरतें, वो आगे आई एक नया और बहादुर आइडिया लेके। उन्होंने मैट्रेसेस यानी कि गद्दे जो हम अपने पलंग पे बेड पे रखते हैं, उसको पानी में भिगो दिया और जिससे वो लोग तोप को पकड़ सके
और तुरंत ठंडा कर सके। ऐसे करने से वगैरमैन जो थे, जो युद्ध लड़ रहे थे, वो बिना तोपों के घायल होके युद्ध लड़ सके। और ऐसा साहस का काम इतिहास में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। वगैर औरतें बहादुरी से तोपों को निहत्था करती थी, अपनी खुद की ज़िंदगी की भी परवाह किए बिना। उनकी बहादुरी रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के समान थी। ये औरतें गुजरात की लक्ष्मीबाई थी। Cities of North Gujarat like Patan, Kheralu, Bhiloda, Mudati broke into the revolt with the help of the natives. Apart from this, in December 1858, Tatya Tope stayed with his army in Panchmahal district of Gujarat. He had to escape to the forest of Banswada when being chased by the British army. तो नॉर्थ गुजरात के शहरों जैसे पाटन, खेरालू, भिलोडा, मुदेती, वहाँ भी रिवॉल्ट चालू हो गया था और वहाँ के स्थानिक लोग उसमें मदद कर रहे थे। उसके अलावा दिसंबर 1858 में तात्या तोप अपनी आर्मी के साथ गुजरात में पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में रहे। जब ब्रिटिश आर्मी ने उनका पीछा किया तो वो वंसवाड़ा जंगल में भाग गए। एंड ऑफ द रिवॉल्ट। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, weapons and soldiers were supplied to the Britishers from England, Iran, etc. The revolt had started on 10th May 1857, but by the end of June 1857, the Britishers were able to regain control on Banaras and Allahabad, Kanpur, and recaptured by the end of July and Delhi in September 1857. Bahadur Shah Zafar and his queen Begum Zeenat Mahal were imprisoned and exiled to Rangoon, the capital of Burma, where they died after few years. Their 3 sons were murdered. तो इंग्लैंड के पास जो भी सोल्जर्स और हथियार थे वो ईरान से मिलते थे। रिवॉल्ट 10 मई 1857 को शुरू किया, लेकिन जून एंड तक ब्रिटिशर्स ने अपनी ताकत से बनारस और इलाहाबाद को अपने कब्ज़े में कर लिया। कानपुर जुलाई के एंड में ले लिया और दिल्ली सितंबर में ले लिया। बहादुर शाह जफ़र और उनकी जो बेगम थी जीनत महल, उनको जेल में डाला गया और रंगून, जिसको आज रंगून जो काले पानी की सज़ा दी गई, जो बर्मा का कैपिटल है और बर्मा को हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहाँ पर थोड़े वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनके 3 बेटे की हत्या की गई। लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन मार्च 1858. झांसी fell because of the treachery of one of the courtiers of Jhansi. As a result, Lakshmibai escaped towards Kalpi, where she died while fighting a battle with the British troop. लखनऊ को भी मार्च 1958 में ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि झांसी में उनका जो एक दरबारी कोटियर था उसने राज बता दिया और इसीलिए वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि लक्ष्मीबाई को कल्पी की ओर भागना पड़ा, जहाँ पर ब्रिटिशर्स की सेना फौज के साथ लड़ाई करते करते झांसी की मृत्यु हो गई। नाना साहेब पेशवा escaped to Nepal after the final defeat. It is believed that he lived in the Sihor village of Bhavnagar district of Gujarat, where he is believed to have died in 1902. तो नाना साहेब अपनी आखिरी हार के बाद नेपाल भाग गए। ऐसा माना गया है कि वो गुजरात के भावनगर ज़िले के सीहोर गांव में रहते थे, जहां पर 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। Now page number 59. It is said that Tatya Tope was captured due to the betrayal of one of his allies. According to the official documents, Tatya Tope was hanged on 18th April 1859. However, as per the other sources, we come to know that Tatya Tope had managed to escape and someone else was hanged in his place. It is believed that he has spent the last years of his life in नवसारी। तो ये बताया जा रहा है कि तात्या तोप के किसी वफादार ने उनके बारे में अंग्रेज़ों को जानकारी दी थी
और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से तात्या तोप को 18 अप्रैल को फांसी पे लटका दिया गया था, लेकिन कोई ये बताता था कि तात्या तोबे भाग गए थे छुपकर और उनकी जगह पर किसी और को फांसी पे लटका दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि उनकी ज़िंदगी के अंतिम साल उन्होंने नवसारी में बिताए थे। नाउ व्हाई वाज द रिवॉल्ट अ फेलियर? ये जो रिवॉल्ट हुआ था शुरू, वो सक्सेस नहीं हुआ, वो क्यों फेलियर हुआ? The revolutionary failed to retrieve the power from the Britishers due to the limitations, some of which were, तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो ये रिवॉल्ट में ज्वाइन हुए थे, वो लोग अपना पावर ब्रिटिशर्स के पास से पुनः प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। रीट्राइव मीन्स पुनः प्राप्त करने में वो सफल नहीं हुए, क्योंकि उनके भी कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशंस थे। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट, द रिबेल्स लैक्ड कोऑर्डिनेशन। देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ रीएन्फोर्समेंट ऑफ मैन, मनी, एम्यूनेशन। तो जो रिबेल्स यानी विद्रोही, जो विद्रोह करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन, समन्वय नहीं था, एकजुट वो नहीं थे, और सेंट्रलाइज लीडरशिप, एक ही लीडर पूरे को कंट्रोल कर सके, सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी, और मैन, पैसा और जो गोला बारूद, एम्यूनेशंस को ज़्यादा लाया जाए, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट हैपेंड वे बिफोर द प्री प्लान डेट. As a result, the planning was disrupted and it alerted the British. जो डेट तय की गई थी रिवॉल्ट के लिए, उससे पहले ही रिवॉल्ट चालू हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो प्लानिंग था वो डिस्टर्ब हो गया और ब्रिटिशर्स चौकन्ने हो गए। द रिवॉल्ट रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड लार्जली इन नॉर्थ इंडिया. Many social reformers refrained directly or indirectly from joining the revolt. This proves that the intellectual class did not support the revolt. ज़्यादातर रिवॉल्ट नॉर्थ इंडिया में ही चला। कई सारे समाज सुधारक थे, वो रिवॉल्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ने में रुक गए। इससे ये साबित हुआ कि जो इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, विद्वान लोग थे, उन्होंने रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया। इंडिया इज़ अ कंट्री फॉर इट्स रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स, dressing, etc. Before the British rule, the people were ruled by regional dynasties. As a result, the sentiments of nationalism, belongingness to India as one nation, had not developed either in people or in their leaders. Many leaders either sided with the British or remained passive at the time of the revolt. तो इंडिया विविधता के लिए मशहूर है। भाषा, खाना, कपड़ा आदि में विविधता देखी जाती है। लोगों अपने प्रदेश के वंश रूल कर रहे थे, उसके कारण लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और इंडिया हमारा देश है, ऐसी भावना लीडरों या तो लोगों में विकसित नहीं हुई। कई लीडर्स ब्रिटिश के साइड में हो गए, या तो कोई निष्क्रिय रह के रिवोल्ट के टाइम पर, तो पैसिव, रिमेन पैसिव यानी निष्क्रिय, उन लोगों ने कुछ भी पार्ट नहीं लिया। The Sikh and the Gurkhas fought by the side of the British, which proved to be a major disadvantage for the rebels. सिख और गुरखा जो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने लगे, जो एक गैर फायदा हुआ विद्रोही के लिए। The British had a superior army, weapons and military commanders compared to the rebels. ब्रिटिशर्स के पास, विद्रोही से अच्छे ब्रिटिशर्स के पास हथियार, सेना और मिलिट्री कमांडर्स थे। All the leaders were fighting for regaining their power or territories lost to the British. They were not fighting for the freedom of their nation. सब लीडर्स अपने प्रदेशों को वापस लेने के लिए लड़ रहे थे, ना कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। Now page number 6060. Effects and consequences. The revolt was not successful against the Britishers. However, it still ushered in a new era of change.
रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स के सामने सफल नहीं हुआ, लेकिन नए युग की शुरुआत हुई। अशर्ड यानी शुरुआत हुई। कंपनी रूल केम टू एन एंड इन इंडिया एंड इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ द क्राउन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो समाप्त हुआ और देश में क्राउन ताज शासन आ गया। द इंटरफियरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया वॉज स्टॉप्ड। अंदरूनी मामलों में प्रिंसली स्टेट्स की दखलगिरी बंद हो गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश के प्रति जो हमारी पॉलिसी नीतियाँ थी उसमें बदलाव करने के लिए मजबूर हो गए। द सैलरी अलाउंस एंड फैसिलिटीज़ गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स सिपॉइज वर इंक्रीज। जो तनख्वाह सैलरी सुविधाएं जो इंडियन सैनिक को मिलती थी वो बढ़ गई। दिस रिवॉल्ट हेल्प्ड इन इन्वोकिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। और ये रिवॉल्ट इंडिया के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने में मददगार हो गया। So students, here we have completed this chapter, and with the completion of this chapter we have finished our semester first portion.